Honorable National President Shri J.P. Nadda ji on 14 February 2023, 4:30 p.m. at Barabathar Taxi Stand, Shillong, Meghalaya. We are having the felicitation ceremony. Ba'il Head is here with us. I welcome Ba'il Head. And I also welcome Sanbar Sulai, our very own Sanbar Sulai. Okay. I want to request the usher to felicitate our chief guest with a garland. In a moment from now, we shall have a cultural program. Give a good round of applause. Give a good round of applause. Ladies and gentlemen, give a good round of applause. I would request the organizer for a cultural program to do the needful. Organizers of national program. I request Ba Mauri to hand over the gift to our respected national president. Our respected national president has been presented with a tupi. Please carry on with the facilitation, the giving of gifts. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Once again, ladies and gentlemen, beloved
residents of the locality, I welcome you once again in spite of this cold, but you have bear with us to be with our Honorable National President. So, without further ado, I would like to welcome our State President, Sri Ernest Mauriji, to give a welcome speech. धन्यवाद। मेरा तरफ से स्टेट का तरफ से मेघालय प्रदेश हम लोग स्वागत कर रहा है हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को और हम लोग का नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज जी जॉइंट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हम लोग का बड़ा नेता एमएलए बा एल हैक और हम लोग का सबसे और बड़ा नेता मिनिस्टर बा सनबोर शुलाई जी और आप लोग को मेरा भाइयों बहनों और हम लोग को पार्टी कार्यकर्ता आप लोग को भी मैं स्वागत देता हूँ। इतना कम समय में आप लोग को बुलाएंगे, आप लोग सब आया जोड़ा। आज ये सबसे पहले मीटिंग है हम लोग का चुनाव में, उसका लिए ताली बजाओ। On behalf of the Meghalaya Pradesh BJP, I welcome our beloved and honorable President JP Nड्डा ji, and I also welcome our national secretary and joint coordinator of North East, Sri Ruturai Sinha ji. I once again welcome our leader and MLA, Ba A.L. Hek ji. I also welcome the only ministers from the BJP, Ba Sanbor Shulai ji. And all the concerned people sitting on the dais, I welcome them, and I welcome all the people of the constituency for waiting for us so long and be patiently to listen about the speech which will be delivered by our national president JP Nड्डा ji. I once again thank the Mandal committee and all the volunteers, those who have worked hard. आप लोग को भी हम स्वागत कर रहा है जो हम लोग का 18 वेस्ट मंडल आप लोग दिन रात भर काम कर रहा है, पूरा इतना पब्लिक जमा हुआ है, ये के लिए आप लोग को ताली बजाओ। तो I will not prolong my speech. This is the first election campaign which we have started in Shillong in the presence of our national president JP Nड्डा ji. Please make a round. ताली बजाओ उसका लिए। आज हम लोग का चुनाव शुरुआत हुआ क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं है हम लोग का साथ में। अभी हम लोग जनता लोग हम लोग को विश्वास लाया है डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए, इसलिए आप लोग ये चुनाव में मेरा तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है अपना भाजपा को बीजेपी को वोट देना। वोट देगा या नहीं देगा? वोट फॉर long live Modi ji, long live JP Nड्डा ji. So I will not prolong my speech since it's already late. So from my side with this few words, thank you and Jai Hind. Ladies and gentlemen, you have just heard our respected State President Ernest Mauri giving a speech, and I will not delay anymore, and I will like to invite Sri Sanbor Shulai to give a speech. Thank you, Pak Clarence.
chairman of this gathering, this program, to welcome our Honorable National President of the Bharatiya Janata Party, Shri J.P. Nadda Ji, who have come all the way from Delhi to bless us. Thank you so much, sir. And on behalf of the BJP Meghalaya, and on behalf of all our brothers and sisters who are assembled here today, we welcome you, sir. Welcome to Shillong. Welcome to Meghalaya. I would like also to express my sincere thanks to Ritu Raj Sinha Ji, who is the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party, the BJP. Thank you, sir. Also, our candidate from Nongthamai constituency, David Kharsi Sati, Arnas Mauri, the Honorable President, and also the candidate of the 18 West Shillong of the Bharatiya Janata Party, all our BJP leaders of Meghalaya State and different mandal, both male and female, the Mahila, the mandal, and all the caricatures and all the leaders who have also come from Guwahati and other places to attend this program. And a special thanks goes to all the party workers of the BJP, to all the supporter of the BJP, and to all our brother and sister, young friends who have assembled here today. We did not expect that huge number of you have attended because you love the Bharatiya Janata Party, you love the BJP. I express my sincere thanks to each and every one of you, to all our brother and sister who have come all the way from their own locality to assemble here today. Thank you so much. God bless you. I want to address also in Hindi for the benefits of all our brother and sister. भाइयों और बहनों, आप लोग को सब धन्यवाद देता है जो आप लोग सब आया है प्यार दिखलाने के लिए, जो आप लोग हम लोग का पावरफुल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सब भारत को भाई बहन को संभालता है, प्यार करता है, इसलिए आप लोग आज प्यार दिखाया, मोदी जी को प्यार करता, जेपी नड्डा जी हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट को प्यार करता, श्री रितु सिन्हा जी को प्यार करता, बाहेक को प्यार करता, बासनबोर को प्यार करता, सब हम लोग का बीजेपी का लीडर्स स्टेट का भी उन लोग को भी प्यार करता है। समय बहुत कमती है, इसलिए भाइयों और बहनों आप लोग देखा है बीजेपी ने क्या काम किया, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप में बहुत काम किया देश को उठाने के लिए, देश को मदद करने के लिए और दुख गरीब को उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल याद था भाई और बहनों 2 साल हम लोग का कोविड का टाइम में, लॉकडाउन का टाइम में कितना मुसीबत हुआ हम लोग को। 2 साल काम जाम पूरा बंद हुआ है, लेकिन मोदी जी सबसे दुनिया में अच्छा काम किया है। लॉकडाउन का टाइम में दूसरा देश में बहुत गुजर गया भूखा से, क्योंकि चावल रेशन नहीं मिलता, लेकिन 2 साल मोदी जी ने हम लोग को फ्री रेशन, फ्री वैक्सीन, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाई दिया कि नहीं? ये है हम लोग का बाबा। और मोदी जी ने हम लोग को भारत का भाई बहन को पूरा उठाई दिया। आज द नरेंद्र मोदी जी अभी तक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स, हम लोग का इज्जत को पूरा उठाई दिया। इसलिए भाई और बहनों आप लोग, हम चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को जिताओ, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को जिताओ तो आप लोग को फायदा होगा। इसलिए भाई और बहनों दूसरा पार्टी चुनाव ऐसा टाइम में, चुनाव का टाइम में क्या बोलता है, यूडीपी हो या एनपीपी हो या कांग्रेस का हाथ, क्या बोलता है चुनाव का टाइम में, आइए कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ,
जीतने का बाद गरीब को लाद, है कि नहीं? लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी हम लोग का साथ साथ है, हम लोग के लिए संभालता है। इसे भाइयों बहनों समझ नहीं लेंगे। अच्छा से 27 तारीख तक, 27 तारीख में सब आइए, अपना अपना धर्म में प्रणाम करके, प्रे करके जाए कि सीधा कमल का फूल में बटन दबाना है। बीजेपी नरेंद्र मोदी ने क्या सिखाया? We should love and respect secularism, not communalism. We should love and respect the Constitution of India. हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करना है, इज्जत करनी चाहिए। मोदी जी ने क्या सिखाया? बीजेपी ने क्या सिखाया? जो भगवान का किताब है, बाइबल हो, रामायण, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, सब इंसान, सब जानवर, सब कीड़ा को, सब मच्छी को खाली एक भगवान का साथ से बनाया। ये सिखाया बीजेपी ने। भाई और बहनों, हो नहीं सकता हम लोग अपना अलग अलग धर्म में, आप लोग अलग अलग जाति है। मोदी जी ने क्या सिखाया हम लोग को? जिसका भी जाति का खून का तो उसको जोड़ने से एक है, ये है सिखाया नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू। कुबले मेथला, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। सब लोग बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू कुबले मेथला, जय हिंद। Thank you, Pak Sanbor Shulai. Bayor Beno, we have come to a moment where we have been waiting for. I would like to take this privilege to invite our Honorable J.P. Nanda ji for a speech. बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उधर से आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। बोलिए लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मेघालय के अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी अर्नेस्ट मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और हमारे सहप्रभारी ऋतुराज जी, हमारे 19 साउथ शिलोंग के प्रत्याशी सनबोर शुलाई जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, और हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के कन्वीनर भी और कैंडिडेट जो एल हेक जी, अंजय जी जो मंडल के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान मेरे साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने इतनी ठंड में इतनी गर्मजोशी वाली रैली बहुत दिनों बाद देखी है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं बैठा बैठा ये भी देख रहा था कि जनता यहाँ तो खचाखच बैठी हुई है और भरी हुई है, लेकिन
ऐसी रैली मैंने पहली देखी जिसमें सेकंड फ्लोर में भी लोग बैठे हैं, थर्ड फ्लोर पर भी बैठे हैं और सामने फिफ्थ फ्लोर पर भी बैठे हैं, यानी 5 फ्लोर्स की रैली। ये बताता है कि आपने मेघालय में 50 पहुंचाने का निर्णय बना लिया है और आगे तेजी से बढ़ने का तय किया है। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो उत्साह मैं देख रहा हूं वो इस बात को तय करता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मित्रों, मेघालय का एक अपना इतिहास है, मेघालय का एक अपना कल्चर है और मेघालय अपने दृष्टि से विकास के कदमों के साथ अपने आप को जोड़ करके चलना चाहता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में जब से मोदी जी आए हैं तब से एक विकास का आपस में कंपटीशन शुरू हुआ है और इस विकास के कंपटीशन में हमेशा हमारी कोशिश रही है कि सभी प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कारणों से, विशेष करके भ्रष्टाचार के कारण से, मेघालय उतनी तेजी से आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात को काम को बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार से छुट्टी पानी है कि नहीं पानी है? अगर पानी है तो कमल के निशान को जिताना है, अर्नेस्ट मौरी को विधानसभा पहुंचाना है, सना बोर को विधानसभा पहुंचाना है, एएल हेक को विधानसभा पहुंचाना है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब सारी दुनिया में देश कोरोना के बाद लड़खड़ा गए, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या यूरोप, सभी देश गलत अर्थनीति लेने के कारण वो लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं मोदी जी की नीतियों के कारण कोरोना की लड़ाई के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भी भारत देश दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है एंड इट इज बिकमिंग द फास्टेस्ट इकोनॉमिक पावर इन दी एंड फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी वर्ल्ड। ये हमको समझना होगा। आज इंडिया का ग्रोथ रेट इंडिया का ग्रोथ रेट 6.1% है और चाइना का ग्रोथ रेट 5.2% है, यानी हम चाइना से आगे। और अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.4% है और फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.7% है। इसका मतलब कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई नहीं है, वो इंडिया है, भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, चाहे इस्पात, स्टील को बनाने की बात कर लो,
हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। चाहे आप मोबाइल बनाने की बात ले लो, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। 2014 में जब मोदी जी नहीं आए थे, उस 2014 में आए, उस समय मोबाइल 92% हम बाहर से मंगवाते थे, 92%। और आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये हमको ध्यान में रखना है। ये जो स्मार्टफोन एप्पल है ना, एप्पल सुना है ना नाम आपने, इस पर भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मैंने नेपाल की टोपी पहनी है। उन्नीस 1970 के दशक में नेपाल में अगर कोई गाड़ी चलती थी तो उसका नाम था जापानी गाड़ी, डैटसन टोयोटा। दुनिया में धूम मची हुई थी जापान की गाड़ियों की। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत बन गया है। भारत में गाड़ियां बन गई। क्या दवाई, क्या केमिकल्स, सब में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज भारत 200 देशों को दवाई भेज रहा है और दुनिया की फार्मेसी बन गया है भारत। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपकी उंगली है, ये जब ईवीएम में बटन दबाती है तो अगर कमल दबाती है तो भारत आगे बढ़ता है। अगर यहां आप दबाओगे तो मेघालय आगे बढ़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि दवाइयों की जब मैं बात कर रहा हूं और कोरोना के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो जब भी आती है तो अभी भी वो मास्क लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसलिए कि अमेरिका में भी टीकाकरण, वैक्सीनेशन ओनली 67%, सॉरी 76%, यूरोप में 67%। और मैं यहां देख रहा हूं आप लोगों को, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और सब बहुत सट के बैठे हुए हैं, बहुत नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये कैसे बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि 140 करोड़ के देश को मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहना है। पहनाया है कि नहीं पहनाया है? सुरक्षा कवच पहनाया है कि नहीं पहनाया है? और कोरोना की लड़ाई में हम सफल हुए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज कोरोना में 100 देशों को हम वैक्सीन उनको हम दे चुके हैं और 48 देशों को हम मुफ्त वैक्सीन दे चुके हैं। इसका मतलब अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया है। ये भी हमको समझना। आप देखिए, जब मैं आपको कह रहा हूं दूसरे नंबर पर देश पहुंच गया, हमारी ग्रोथ रेट ये पहुंच गई, हमारा विकास ये हो गया। बोलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इस तरीके से हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो कि सही नीति का अर्थ क्या होता है? सही नीति का अर्थ होता है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना।
लेकिन यहीं आप देखिए आपके पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ, गलत नीति के गलत नतीजे, सही नीति के सही नतीजे, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम कहते हैं लॉन्ग लिव, ऐसे ही नहीं कहते। आप बताइए, यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, युद्ध हो गया। आप बताइए किस देश के प्रधानमंत्री ने या किस देश के राष्ट्रपति ने युद्ध को रुकवाने की ताकत रखी? किसी ने रखी क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? ब्रिटेन ने रखी क्या? पाकिस्तान ने रखी क्या? श्रीलंका ने रखी क्या? बांग्लादेश ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? लेकिन मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की और युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चे हमारे सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया, जिसमें मेघालय के भी 35 बच्चे थे। मेघालय के भी 35 बच्चे थे। ये है शासन और ये है आपके उंगली का कमाल। सही जगह बटन दबता है तो विकास हो जाता है और गलत जगह दब जाता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है, कमीशन हो जाता है। ये भी हमको समझ लेने की जरूरत है। आप बताइए, मैं विकास की बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको कहूंगा कि अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप बताइए, हमेशा शांति लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में 850 वन विकास केंद्र बने तो उसमें से 39 विकास केंद्र मेघालय में बने। यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारी केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। 9 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से 8 सालों में और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें 3,400 करोड़ रुपए का खर्च करने का, योगदान करने का काम किया है। मित्रों, विकास के दृष्टि से बहुत सी योजनाओं को काम किया। आप बताइए, आजकल नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रेलवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का, ढांचा देने का काम हम लोगों ने पकड़ा है। एकलव्य स्कूल अगर 150 खुल रहे हैं तो उसमें से 39 एकलव्य स्कूल मेघालय में खुल रहे हैं। उसी तरीके से पिछले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर 2,450 करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। यह भी हम मेघालय की जनता को बताना चाहते हैं। उन्होंने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर तूरा में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, शिलान्यास रखा था। उन्होंने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 इसका भी फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास रखा था। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इसका उद्घाटन न्यू कैंपस का भी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया था। उसी तरीके से स्पॉन लेबोरेटरी मशरूम डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन किया था।
और इसके साथ साथ शिलोंग स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 196 करोड़ रुपए शिलोंग शहर पे खर्च करने की योजना बनाई थी। इसलिए मित्रों, हमारे चाहे डेविड जी हो जो यहाँ बैठे हैं, हमारे डेविड साहब बैठे हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, फिर चाहे सना मौर जी हैं, चाहे हमारे अर्नेस्ट मौरी जी हैं, चाहे एएल हेक जी हैं, आप सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह शिलोंग की भी तस्वीर बदल रहा है और वह मेघालय की भी तस्वीर बदल रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और भी आपको बताने आया हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव समझते हैं ना, विलेज, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, इनको मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। बोलिए, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? आप शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कैसा देश था जो 2014 में 18,000 villages were without electricity? Which type of country it was after so many years of independence? इतनी साल की आजादी के बाद 18,000 गांवों ने बिजली नहीं देखी थी और प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी। इस बात को भी हमको समझना है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। अगर बिजली गांव में भी पहुंच गई तो घर में नहीं पहुंची। 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ घर को बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया। आप बताइए, आजकल आप लोगों में से कोई बिना गैस सिलेंडर के है क्या? कोई बिना गैस सिलेंडर के है क्या? उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 50 लाख गैस के सिलेंडर दिए गए और उसमें से हमारे मेघालय में 2,10,000 गैस के सिलेंडर दिए गए और चूल्हा दिया गया। मुझे याद है, मैं गांव से आता हूं। एक समय में हमारी बहनें लकड़ी काट के लाती थी गांव से, जंगलों में जाकर, और फिर वो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और फूंक फूंक करके वो चूल्हा जलता था, धुआं उठता था, धुआं वो छाती में लेती थी, फेफड़े की बीमारी होती थी। उनसे आजाद कराने का काम किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है तो मोदी जी ने दिया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बताइए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और गांव में बने। 4 करोड़। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में, और 1993 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे को आके बताता था कि आपको 2 पंचायतों में 1 इंदिरा आवास का घर मिला है, इसको किसको देना है बताओ। मेरे लिए कितनी बड़ी सरदर्दी हो जाती थी कि मैं किसको दूं। इतने लोगों का एप्लीकेशन है, एक घर से क्या बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दे दिए, पक्के मकान बना करके दे दिए, ये भी हमको याद है। और यहाँ मेघालय में 70,000 मकान बने, पक्के मकान। और हमारा संकल्प है कि कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दे करके हटेंगे, गरीब की झोपड़ी में नहीं रहेगा। इस बात की हमने व्यवस्था की। आप बताइए, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इलेक्शन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए, जल जीवन मिशन, मुझे नहीं मालूम शिलोंग का क्या हाल है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारी बहनें
पानी का बर्तन लेकर के गली के नलके के पास लाइन लगा करके पूरा दिन इंतजार करती है कि नहीं करती थी? करती थी कि नहीं करती थी? और मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूं, मेरे गांव में मेरी बहनें बोलती थी मेरे सर के बाल चले गए सिर्फ घैला उठा उठा करके 3-3 किलोमीटर से पानी लाने के लिए। आज मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 8 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन से जोड़ दिया गया है और 3,50,000 घरों में नलके मेघालय में लगा दिए गए हैं। ये मैं आपको बताने आया हूं। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, आप बताइए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए ये 5 लाख रुपए सालाना मिल रहा है। अगर 2022-23 में आपने खर्च कर दिया तो 2023-24 में मोदी जी फिर से 5 लाख रुपए आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इस तरीके का हम लोगों ने काम किया है। इसके चलते गंभीर बीमारियों से गरीब लोगों को लड़ने में ताकत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ताकत मिली कि नहीं मिली? मित्रों, उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि नहीं किया? कोई भूखा ना सोए इसका व्यवस्था की है कि नहीं की है? और आपको जानकर के खुशी होगी कि यहां मेघालय में 22 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज मिल रहा है। ये मेघालय की स्थिति बता रहा हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का, बताइए किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसमें भी 2 लाख किसान सम्मान निधि में 2 लाख किसानों को यहां मेघालय में मिल रहा है, जहां 11 करोड़ 78 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। इज्जत घर टॉयलेट्स यहां मेघालय में, यानी मेघालय वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रॉस्परस स्टेट, एजुकेटेड स्टेट, बट यू विल बी एस्टोनिश्ड, आप आश्चर्य करेंगे कि यहां भी गांव में 2,70,000 परिवार खुले में अपने दैनिक जीवन के नित्य कर्म के लिए जाते थे। फॉर द डेली नीड्स they used to go outside in the village, in the open area. Today women dignity, महिलाओं का इज्जत देना, महिलाओं की डिग्निटी की चिंता करना मोदी जी ने चिंता की है और 2,70,000 इज्जत घर मेघालय में बनाए गए हैं और 11 करोड़ इज्जत घर देश में बनाए गए हैं। दिस इज महिला डिग्निटी, उसकी इज्जत की चिंता की गई है। आप समझिए कैसा देश था। 11 करोड़ बहनें खुले में शौच जाती थी, 11 करोड़ हमारे बच्चे बाहर जाया करते थे। विच टाइप ऑफ कंट्री इट वॉज? एंड टुडे वी कैन से कि महिलाओं की डिग्निटी की चिंता हुई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यहां मुझे पता चला है कि आजकल कोई TMC ऐसा भी कुछ आ गया है। ये T stands for टोलाबाजी, M stands for money laundering and mafia raj, and C stands for corruption and commission. और एक बात याद रखना, ये समाज को बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये दूसरे देशों से भी बुला करके ला करके वोट बनाने वाले लोग हैं। ये यहाँ की संस्कृति को समाप्त करने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? याद रखना मित्रों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, न इधर न उधर, ये कहीं भी नहीं।
ये किसी के भी नहीं, इनको सत्ता चाहिए। ये बंगाल में लड़ते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, असम में लड़ते हैं तो अलग हो जाते हैं, ये केरल में लड़ते हैं तो अपने ढंग से लड़ते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी त्रिपुरा में लड़ रहे हैं, दोनों गठजोड़ करके लड़ रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस। इनका कोई ईमान नहीं है, कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी चाहिए। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? क्या भ्रष्टाचारी सरकारों को आने देना है क्या? क्या भ्रष्टाचार होने देना है क्या? मैंने इतनी बातें आपके सामने गिनाई। कल मैं यहाँ का मैनिफेस्टो रखूंगा, उसमें मैं आपको मूल बातें बताऊंगा और उसमें मेघालय को हम क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि ये हमारी पार्टी है, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो भी करके देती है। ये हमारी पार्टी है। हमने कहीं नहीं कहा था कि आपको नेशनल हाईवे देंगे, लेकिन हमने नेशनल हाईवे की बौछार लगा दी। हमने कहीं नहीं कहा था कि हम आपके विकास के लिए ये वाला काम करेंगे, शौचालय देंगे, लेकिन हमने आपके लिए किया। हमने कहीं नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गरीबों को हम अन्न देंगे, लेकिन हमने दिया। इसलिए मित्रों, ये हमारी पार्टी है जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने छाती ठोक करके आती है और जनता को बताती है कि क्या कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, अब जो कहेंगे वो करके देंगे, इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं इतनी बड़ी जनसभा देख रहा हूं, आप सब में उत्साह देख रहा हूं, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स इज ए वेरी सीरियस गेम। पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत गहरी चीज है, और ये मेरे या अर्नेस्ट मौरी के या हेक के, ये सनाबोर के कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है, ये आपके हकों की रक्षा करने के लिए है, ये मेघालय को आगे ले जाने के लिए है, मेघालय की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। इसलिए गहराई से चिंतन करना, जो मैंने बात कही अगर वो सच्ची है तो कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दे देना, अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे ठुकरा देना, लेकिन सीरियसली काम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मेघालय पीछे न छूट जाए, इसकी आपने चिंता कर लेना, यही आपको निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मेघालय। Thank you very much, sir, for your informative speech. Ernest Mori.